स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोनिक सेक्शन की सीरीज, जिसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि कोनिक सेक्शन होता क्या है एंड देन कोनिक सेक्शन के अंदर जो चीजें आती हैं वो होती है हमारी पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल भी बेसिकली वैसे उसका कोनिक सेक्शन का ही पार्ट होता है। तो हम इसके बाद पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज जो है हमारे लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होने वाली है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोनिक सेक्शन एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ अ पैराबोला। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपने बोर्ड और जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। तो कोनिक सेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो लगभग 4 से 5 मिनट की है। इस वीडियो को मतलब ये बेसिकली 3D वीडियोस है, मेरी नहीं है बेटा, मैंने भी यूट्यूब से उठाई है। तो इस 3D वीडियोस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि आखिर कॉनिक होता क्या है और किस तरीके से दो फिगर बनती है। देन जब ये वीडियो कंप्लीट होगी हम इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो से फायदा ये होगा, आप 3D में चीजें देखोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर समझ में आएगी, क्योंकि फिगर ही 3D में है। तो 2D में आपको ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वीडियो, देन वी स्टार्ट आवर डिस्कशन। Conic sections. In this module, you will learn about conic sections. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. The line that rotates about the vertex is called the generator, and the line that remains fixed is called the axis. A right circular cone has a circular base, and its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. The perimeter of the base is called the directrix. The lateral surface of a right circular cone is called a nap. A double right circular cone has two naps. The nap above the vertex is called the upper nap, and that below the vertex is called the lower nap. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. Conic sections. If a plane intersects a double right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can cut the cone in three different ways. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one nap of the double right circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However,
If the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves. Degenerate conics. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point, the parabola becomes a line, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figures so obtained are called degenerate conics. In this module, you have learned that when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. When the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle, the hyperbola is formed. If a plane intersects the double right circular cone at its vertex, the figures formed are called. तो वीडियो देखने के बाद बच्चे अब मैं आपको समझाता हूं कॉनिक सेक्शन क्या है। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी ऑलरेडी। तो अब चलते हैं बच्चे। तो आपने देखा होगा एक लाइन होती है एल, ठीक, एंड इस लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन डाली जाती है जो होती है एम, और ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये मेन लाइन एल से बच्चे हमारे पास अल्फा एंगल बना रही होती है। अब हुआ क्या बच्चे, इस लाइन ने, इसे जनरेटर बोला गया, ये लाइन घूमी, पूरा घूमी और आपको एक कोन की शेप देके गई। ये कोन की शेप ऐसे यहां से भी मिली मेरे को, और सिमिलरली ये बच्चे जब ये घूमी तो एक कोन की शेप मेरे को यहां से भी मिली। तो इस तरीके से मेरे को एक कोन जनरेट हुआ जो कि मेरा इस तरीके से फॉर्म में आ रहा है। तो ये कोन जो है बच्चे बेसिकली आपका जनरेट हुआ है इस लाइन के थ्रू, एंड ये लाइन जब आपकी मूव हुई है यहाँ पे ये लाइन जो है अराउंड इसके एज इट इज रही है। तो यानी कि बच्चे इस लाइन को फिक्स करके दूसरी लाइन को घुमाया, हमारे पास एक कोन जनरेट हुआ। कुछ इस तरीके से हमारे पास कोन जनरेट होता है। तो इस लाइन को हमने बोला कि यार ये हमारी जनरेटर है बच्चे। जो ऊपर वाला हिस्सा आया इसे अपर नैप, जो नीचे वाला हिस्सा आया इसे लोअर नैप बोला जाता है। जो एंगल है बच्चे इस लाइन ने इस एल के साथ बनाया वो मेरे पास है क्या, अल्फा। तो जो बीच में जो हमारा पॉइंट आ रहा है इसे हमने बोला वी, और इसे हम बोलते हैं बच्चे हमारे पास एक्सिस। तो जनरेटर ने एक्सिस के साथ मिलके एक डबल कोन बनाए। अब करा क्या मैंने बच्चे, एक मैं प्लेन लेकर आया। अब मान के चलो कि आपके पास एक डबल कोन फिगर है, लाइक डमरू जो होता है आप वगैरह देखा भी होगा, तो वो एक डबल कोन फिगर जैसा ही होता है। अब आप प्लेन लेकर आए, प्लेन का मतलब एक A4 पेपर लेकर आए, और A4 पेपर को आपने देखा कि अगर मैं डमरू के अंदर मतलब A4 प्लेन से डमरू काटता हूँ या डमरू के अंदर लेके जाता हूँ तो किस किस टाइप की फिगर्स बनती है। तो मैंने भी यही करा बच्चे। ये प्लेन है, प्लेन का मतलब एक सिंपल है, A4 पेपर समझ सकते हो, और इस पेपर को इस फिगर में अलग अलग एंगल्स पर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि काटता हूँ, या फिर ये कहो कि पेपर से मैंने डमरू को काट दिया। पेपर इतना तेज था या डमरू इतना हल्का था। कटने के बाद हमारे पास किस किस टाइप की फिगर आती है वो हम डिस्कस करेंगे, और किस किस तरीके से किस किस एंगल्स पे काटा जा सकता है इसकी भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे मेन बातें ये है एक्सिस, और एक्सिस के साथ हमारे पास बेटा दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल है अल्फा जो कि जनरेटर बना रहा है, एक एंगल है बीटा जो कि कोन बना रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हाईलाइट दिस कि हमारे पास एक अल्फा एंगल बन रहा है, एक बीटा बन रहा है, ये जनरेटर बनाता है, और ये बना रहा है प्लेन, और दोनों जो है हमारे ये एक्सिस के साथ बन रहे हैं। ठीक,
आगे चलते हैं। अब मेरे को ये बोला हुआ है कि अगर ये प्लेन जो है, जो बीटा एंगल है, यानी कि बच्चे हमारे पास जो बीटा बोला था, जो प्लेन और एक्सिस का जो एंगल है वो अगर 90 डिग्री है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब मान के चलो एक डमरू खड़ा हुआ है, आप प्लेन लाए बिल्कुल सपाट उसको काट दिया, तो जब ये एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बना रहा है रिलेशन, मैं रेड की जगह ब्लू लेता हूं, तो एक्सिस के साथ जब ये 90 डिग्री रिलेशन बनाता है तो हमारे पास जो फिगर्स बनती है वो हमारी क्या बनती है, सर्कल बनती है। और आपने अपने वीडियो के अंदर भी यही देखा होगा। दूसरा है कि बच्चे अगर मैं अपने बीटा फिगर को 90 डिग्री से कम रखता हूं, बट हाँ अभी ये अल्फा से ज्यादा है, ठीक, तो हमने अल्फा, ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये अज्यूम कर रहा है कि ये लेस देन 90 डिग्री है। तो जब मैंने ऐसा देखा तो मेरे पास ये जो शेप आ रही है इस तरीके से आएगी ये शेप, यानी कि प्लेन से मैं डमरू को ऐसे तिरछा करके काट रहा हूं, तो वो शेप जो होगी वो सर्कल नहीं होगी, वो कहलाएगी हमारी इलिप्स कहलाएगी। आगे चलते हैं बच्चे। अगर मेरे पास एंगल जो है अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं, यानी कि जिस एंगल पे हमारे पास जनरेटर जो है एक्सिस का एंगल बना रहा है वही सेम एंगल पे ही प्लेन काट रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, तो ये अगर आप देख सकते हो तो ये मेरे पास अल्फा एंगल है और ये मेरे पास बीटा एंगल है। अल्फा एंगल और बीटा एंगल आपस में मिलके मेरे को मतलब ये बराबर हैं, तो इस कंडीशन में ये प्लेन जो है हमारे को क्या दे रहा है, ये पैराबोला फिगर को दे रहा है, यानी कि जो फिगर आ रही है वो पैराबोला कहलाएगी। और इसी तरीके से जब मेरे पास बीटा जो है अल्फा से भी कम हो जाएगा, तो यानी कि बच्चे इसी फिगर में बात करूं कि ये बीटा और ज्यादा कम हो गया, तो ये क्या है, प्लेन को दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको देखो ये यू शेप जनरेट हो रही है, ऊपर भी यू शेप जनरेट हो रही है और नीचे भी यू शेप जनरेट हो रही है। इसे बोला जाता है बच्चे हाइपरबोला। तो यहाँ पे ये दोनों फिगर्स को काटता है। तो इस तरीके से हमारी तीन फिगर जो हमारी चार फिगर जनरेट हुई हमारी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास एक अल्फा था, हमने देखा कि यार बीटा जो है अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं तो सर्कल आता है, अगर मैं बीटा जो है 90 डिग्री से कम लेता हूं तो हमारे पास इलिप्स आता है, लेकिन ये अल्फा से ज्यादा होना चाहिए। अगर अल्फा और बीटा बराबर है तो पैराबोला आता है। अगर बीटा अल्फा से भी छोटा हो जाता है तो मेरे पास बच्चे मेरे पास जो आएगा वो एक हाइपरबोला होगा। तो अगर आप देखो तो बीटा को मैं लेस देन 90 डिग्री कर, पहले 90 लिया, फिर 90 से कम लिया, फिर मैंने अल्फा के बराबर लिया, फिर उससे भी कम लिया, यानी कि बीटा को धीरे धीरे मैं छोटा करते जा रहा हूं। अब बात करते हैं डीजेनरेटिंग फॉर्म ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। देखो प्लेन को हमने काटने के ऊपर बोला था कि प्लेन कैसे कैसे काट सकता है। अब डीजेनरेटिंग फॉर्म ये होती है कि प्लेन ऐसी जगह पे काटे कि कोई शेप नहीं बन रही हो, ठीक, सपोज कि प्लेन जो है बिल्कुल बीचों बीच काट दे, यहां पे जो हमारा वी शेप बन रहा था, तो इससे होगा क्या कि हमारे पास बेसिकली जो डमरू है दो, उसका ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और कोई चीज हमारे पास हाथ में नहीं आएगी। तो वहां पर एक पॉइंट जनरेट होगा जिस जगह पे वो काटा है। तो यही बात यहाँ पे बोल रखी है। तो सबसे पहले डी जनरेट का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो बेसिकली हम जो पढ़कर आए, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि चार फिगर जनरेट नहीं होती तो उसे बोलते हैं डी जनरेटिंग फॉर्म, कुछ और जनरेट होना जहां पे हमारे पास सर्कल इलिप्स वगैरह जनरेट नहीं हो रहे। तो अल्फा बीटा एंड 90 डिग्री, तो बीटा 90 डिग्री से कम है और अल्फा से ज्यादा है। अगर इस पर बात करी जाए, देन प्लेन इंटरसेक्ट द वर्टेक्स एग्जैक्टली एट द पॉइंट। ये बात बोली कि अगर 90 डिग्री होगा हमारा बीटा तो हमारे पास बच्चे एग्जैक्टली पॉइंट होगा। अगर मैं कहूं ये प्लेन जो है ऊपर काटता तो हमारे पास क्या आती बच्चे, हमारे पास ये सर्कल क्रिएट होता। तो ऊपर काटेगा सर्कल, बीच में काटता है तो हमारे पास वर्टेक्स जिसको हमने बोला था वहां काटता है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट जनरेट करके देगा। अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास वर्टेक्स से पास होता है, तो हमारे पास जो ये प्लेन है बेसिकली ये जो जनरेटर है इसके साथ हो जाएगा। तो ये मेरा जनरेटर है और यही मेरा प्लेन है बच्चे, तो इसी के साथ ये हमारे पास एक लाइन हो जाएगा और इस सिचुएशन में हमारे को जो चीज फिगर मिलेगी वो मिलेगी एक लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है कंटेनिंग अ जनरेटर ऑफ अ कोन। आगे चलते हैं बच्चे। तीसरा केस है कि अगर बीटा अल्फा से भी कम हो जाए तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चे, मेरे को यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये प्लेन और ज्यादा कम हो जाए, पीछे हो जाए, तो होगा ये बच्चे कि जो ये लाइन है ना ब्लू वाली, अगर एंगल अल्फा से भी कम हो जाए तो ये ब्लू लाइन जनरेट होगी। ब्लू से अच्छा आई थिंक
मैं व्हाइट करके देखूं, तो व्हाइट तो कॉमन हो जाएगा, येलो करके देखते हैं, येलो ज्यादा अच्छी लग रही है। तो अगर ऐसा होता है बच्चे तो क्या होगा, हमारे पास प्लेन जो है ना वो इस तरीके से इस लाइन जनरेट करेगा, और हमारे पास फिर अब इस सिचुएशन में एक ये लाइन मिलती है और एक ये लाइन मिलती है। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, यानी कि हमारे पास एंगल और ज्यादा कम है, तो इस तरीके से मेरे को ये लाइन मिली और एक ये लाइन मिली, यानी कि एक हमारे पास एक्सिस लाइन मिलती है और एक प्लेन के थ्रू लाइन मिलती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पेयर क्रिएट होता है। तो ये है डीजनरेटिंग फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। तो आई होप बच्चे आपको वीडियो से और मेरी इस डिस्क्रिप्शन से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिरकार की कोनिक है क्या और ये जनरेट कैसे होता है। आगे चलते हैं। एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है a conic section or a conic is a locus of a point P which move in such a way that its distance from a fixed point S always bear a constant ratio to its fixed to distance from a fixed line, all being in the same plane। ठीक है, ये सेम प्लेन वाली बात इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कह रहा है कि एक फिक्स लाइन है और एक मेरे पास फिक्स पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस, अब मुझे नहीं पता बेटा कि कैसे पॉइंट्स का लोकस बनेगा, तो ऐसे पॉइंट्स का लोकस कि अगर मैं इस फिक्स पॉइंट को एस दे दूं नाम, एंड लाइन के लिए कुछ नहीं बोला तो कोई नहीं, यहाँ पे मैं एम देता हूं। तो कह रहा है कि ये जो रेशियो है ना डिस्टेंस का, इसको मैं पी नाम दे देता हूं बच्चे, लोकस ऑफ पॉइंट पी। तो कह रहा है कि जो हमारे पास इन सच अ वे डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू यानी कि अपॉन में, यानी कि पी एस अपॉन में पी एम एक कांस्टेंट रेशियो होगा, यानी कि एक कांस्टेंट फिगर जनरेट होगी। इन सिंपल मेरे को बोल रहा है कि कोनिक के अंदर हमने अभी सिंपल वो देखा कि ये ऐसा करने से ऐसी सारी फिगर्स आती हैं। अब इन डेफिनेशन कोनिक क्या है, तो कहता है कि ऐसी फिगर्स जब उनका एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स पॉइंट से हमने डिस्टेंस निकाली किसी भी पॉइंट की और उनको अपॉन में रखा रेशियो में, तो हर बार है ना एक कांस्टेंट रेशियो आई। तो उस कांस्टेंट रेशियो को हमने क्या बोला बच्चे, ई बोला। ठीक, अब कांस्टेंट रेशियो आई, ई बोला, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि ई जो है क्या क्या सिचुएशन हो सकती है और कैसे कैसी फिगर जनरेट हो सकती है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये रहा, हो सकता है बेटा आपकी ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, हो सकता है ई 1 आ जाए, हो सकता है बेटा ई जो है 1 से बड़ा आ जाए, हो सकता है ई 0 ही हो जाए। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि हमने ये बात करी कि एक लाइन से जो कि ये है बच्चे, और एक फिक्स पॉइंट है बच्चे जो कि ये है मेरा, इस कंडीशन में लाइन और फिक्स पॉइंट के बीच में जो ये पॉइंट है इनकी डिस्टेंस ली जाती है P से ये M और ये S। तो हमारे पास जो एक कांस्टेंट रेशियो बनाने वाली कौन कौन सी फिगर है, तो एक आपका इलिप्स बनाती है बच्चे, और इलिप्स के साथ अच्छी बात ये है इसका जो E है ये लेस देन 1 होता है, यानी कि जो रेशियो आएगी वो लेस देन 1 आती है। जब रेशियो एग्जैक्टली 1 के बराबर आ जाए तो हमारे पास एक पैराबोला क्रिएट होता है। जब ये 2 से ज्यादा जाए तो हमारे मतलब 1 से ज्यादा जाए तो हमारे पास हाइपरबोला क्रिएट होता है, और जब ये इंफिनिटी चली जाए तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्रिएट होती है। तो बच्चे हमारे को कहने का मतलब एनालिटिकल डेफिनेशन ये बोलती है कि इस जो हमने डेफिनेशन को यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ से हमें 3 फिगर्स मिलती है। सर्कल यहाँ पे हट जाता है एक तरीके से क्योंकि वो 0 होने की वजह से, और हमने सर्कल की स्टडी भी अलग कर ली थी इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ना भी जरूरी नहीं है। तो बेसिकली हमें ये डेफिनेशन ये बोलती है कि आप अगर ऐसा डिस्टेंस का रेशियो लेते हो तो आपके पास 4 फिगर बनती है, और होता क्या है इन डिस्टेंस की रेशियो में अगर ये 1 से लेस देन आती है, 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर देन हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 केस में सर्कल होता है। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन कहती क्या है। टू इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने यहां पे बात करी कि फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स लाइन की बात हुई है, एंड यहाँ पे फिक्स पॉइंट की बात हुई है। इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोला जाता है एंड ऑलवेज रिप्रेजेंट टू अ एस इन होल कॉनिक सेक्शन। एंड दिस फिक्स लाइन को जो बोला जाता है इसे डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है।
आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो है हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, आपको यहाँ पे देख भी रहे होगे, और यहाँ पे हमने इसको फोकस लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, तो हम इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बेटा ये पढ़ा कि ये हमारे पास एक लाइन है, और यहाँ से हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जिसको हमने एस बोला। फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट्स का लोकस होगा, और इस तरीके से होगा कि इसका जो है हमारे पास अच्छा, ये पॉइंट का नाम तो मैंने एस दे ही दिया है। तो ये जो है किसी ना किसी रेशियो में होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है उसको लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फोकस को लिख देता हूँ बच्चे मैं अल्फा बीटा, और ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स एंड वाई। तो बच्चे मेरे पास क्या है, मेरे को उसने बोला है पी एस अपॉन में पी एम आपका एक रेशियो होगा, जिसको हम बोलते हैं ए। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम हम ये भी कह सकते हैं। नाउ पी एस क्या है बच्चे, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस, एंड पीएम क्या है बच्चे, हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। और जो लाइन है यहाँ पे इस बार ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो बेटा हमारे पास ये जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस बीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा e पीएम हो जाएगा बच्चे हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, और ये मॉड्यूलस। इसको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल बात है, बट इस तरीके से हम अपने एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक लेकर आते हैं। याद रखना बेटा, ये कोनिक की डेफिनेशन है, ठीक है। हमने फोकस भी पता था, डायरेक्ट्रिक्स भी पता था, एसेंट्रिसिटी क्या है अभी मैंने सिंपल ई ले लिया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होगा। तो चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। कहता है द इक्वेशन ऑफ अ कोनिक सेक्शन बताओ। फोकस उसने मेरे को बता दिया है, ये डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये है, एसेंट्रिसिटी ये है। तो मेरे को क्या चाहिए होता है बच्चे, हमने ये पढ़ा कि पी एस अपॉन में पी एम। तो यानी कि बेसिकली अगर आप पी एस पी एम में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ये कह सकते हो ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी ऊपर रहेगी, और ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी नीचे रहेगी, सिंपल, ठीक है। तो अब पी एस जो है, पी तो मैंने ले लिया एक्स वाई, एस मेरे को गिवन है -10, एम जो है वो हो गया 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा छोटा ज्यादा हो गया, ढंग से लिख देता हूं। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पी एस अपॉन पी एम को अगर हम आगे लेकर चलें तो ये हो जाएगा बेटा, ये इज इक्वल टू ई होता है। तो पी एस आ गया बच्चे हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू ई मेरे को दे रखा है 1 अपॉन रूट 2, पी एम मेरे को दे रखा है मॉड्यूलस 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन में अंडर द रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। बेटा क्योंकि मेरे को रूट हटाना ही है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये 1/2 हो गया बच्चे। यहाँ से बच्चे 16 और 9 होते हैं हमारे 25, तो यहाँ पे ये 1/25 आ गया। यहाँ पे आ गया 4x माइनस 3y प्लस 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ा जाए तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम खोल भी दे सकते हैं या खोल ही लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा अब आप जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका ये वाला आंसर आ रहा है। इट्स अ नॉर्मल अलजेब्रिकल कैलकुलेशन, आप खुद भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चे।
अब इसके अंदर जैसे हमने बच्चे ये देखा, तो हमने ये देखा कि हमारे पास एक इलिप्स बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है, एक हाइपरबोला बन रहा है। सर्कल की स्टडी हम ऑलरेडी करके आ रखे हैं। तो अब यहाँ पे हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या है, देन इसके बाद हम इलिप्स एंड देन इसके बाद हम हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला क्या कहता है? इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस है जो मूव करेगा प्लेन पर सच दैट इसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम फोकस बोलते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन या सेट, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस जो है बियर करता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ठीक है, क्यों इक्वल है? क्योंकि इसकी एसेंट्रिसिटी जो है हमारे पास 1 होती है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था बेटा कि पीएस अपॉन में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली हमने पढ़ा था पीएस अपॉन में पीएम जो होता है वो ई के बराबर होता है। अगर ई मेरा 1 हो जाएगा तो पीएस अपॉन में पीएम इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अ फिगर जो कि हमें जनरेट करके देगा पीएस इज इक्वल टू पीएम। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई कि पीएस और पीएम बराबर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है इक्वल है। तो बच्चे मेरे को ये बोल रहा है कि ये मेरे पास लाइन है एंड यहाँ पे ये मेरे पास पॉइंट है। तो मैं इस बार ऐसे पॉइंट लूंगा जिनका ना डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि यहाँ से ये एंड यहाँ से भी बच्चे ये, कि ये जो डिस्टेंस है ये बराबर होगा। तो अब ये किस टाइप की फिगर बनेगी डिस्टेंस बराबर होने में? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं। P1 पॉइंट लिया है मैंने, P1, यहाँ पे P2, P3, P4, सॉरी 4 है, P5, P6, P7, जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने उनको लिया और इनकी जो डिस्टेंस है ना, इसकी जैसे इस पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से P1 Q1 और P1 F जो है बराबर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिए हैं साथ के साथ, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से बराबर है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो एक सी शेप ले रहा है। तो पैराबोला जो होता है बेसिकली हमारा एक सी शेप होता है। और इन, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ बोलूं तो पैराबोला बहुत कॉमन कर्व है। बहुत जगह हमारे पास पैराबोला बनता है, ये सी शेप बनता है। जैसे बच्चे आप बॉल को थ्रो करते हो तो आपको सी शेप देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आप स्लाइड करते हो अगर, या फिर हम रोलर कोस्टर की बात करें तो आपको एक सी शेप देखने को मिलता है। तो बेसिकली पैराबोला की तरह ही होता है। ज्यादातर जो लाइट्स होती हैं हमारे 2 व्हीलर 3 व्हीलर के अंदर, वो लाइट्स के पीछे एक वो लगा होता है कवर करने वाला, वो एक बेसिकली पैराबोला की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को के ऊपर काम कर रहा होता है। तो दीज आर द मेजर्स, आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे आपको पैराबोला देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि बेटा अगर हम पैराबोला क्या होता है, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास जो भी ऐसे पॉइंट्स का लोकस होगा वो हमें जो कर्व देगा उस कर्व का नाम है पैराबोला। दैट्स इट, काम खत्म। जैसे बच्चे हमें इक्वेशन दे रखी है, तो ये क्वेश्चन है, कहता है कि इक्वेशन बताओ पैराबोला की जिसमें फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट आता है एक्स वाई, इस पॉइंट की जो है डिस्टेंस हमारे पास किससे, पॉइंट से एंड लाइन से, ये क्या होती है, बराबर। तो पॉइंट क्या दे रखा है मेरे को, -3 2, एंड लाइन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ पे करा तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, अंडर द रूट हो गया, इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 4 का, यहाँ पे सॉरी ये मॉड्यूलस हो गया बेटा, एक सेकंड, ये मॉड्यूलस हो गया अपॉन में अंडर रूट 2 हो गया। ठीक है, तो मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं बच्चे, जो कि हमें नॉर्मली करनी है स्क्वायरिंग। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू, बच्चे मेरे पास आया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस में बच्चे पहले तो आ जाएगा 2xy माइनस में बच्चे 8y माइनस में 8x
एंड अपॉन में स्क्वायर होगा तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6, ओहो 2 से मल्टीप्लाई भी तो होना है। तो मेरे पास बेसिकली सिचुएशन आ जाएगी जो कि होगी 2x स्क्वायर एंड ये हो जाएगी प्लस में 2y स्क्वायर एंड ये हो जाएगी बेटा 12x माइनस 8y, 9 और 4 13 दूनी 26 यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बच्चे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और जब सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो डेट्स में मैं इसको इसके नीचे ले जाता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में बेटा माइनस है तो 8x, अच्छा इसके नीचे ले गए ना, मेरे को तो साइन चेंज करने हैं। तो ये आ गया बच्चे मेरे पास माइनस का 8x माइनस का 8y प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। हम करते हैं माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, और जो रिजल्ट मिलेगा बच्चे मेरे को मिल जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x। यहाँ पे बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि ये कट गया है हमारे पास, इसलिए मैं इसको फिलहाल 0y लिख रहा हूँ, कोई बात है आपको समझानी है। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है ये पैराबोला की इक्वेशन आई है। आगे चलते हैं बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। हमको पैराबोला की इक्वेशन फिर से निकालनी है। फोकस 0 0 है, लाइन ये है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं जल्दी से वही अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ। +2 अंडर द रूट, बेटा मेरे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मॉड्यूलस, ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग करी बच्चे, तो मेरे पास आ गया बेटा हमारे पास 9x प्लस में 16y प्लस में 4। हाँ आगे बच्चे मेरे पास आया माइनस का 4 या 12 दूनी 24 xy, फिर आया बच्चे 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 16y प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12x अपॉन में बेटा ये 25 है तो 25 एक्स स्क्वायर इधर ले गया, 25 वाई स्क्वायर इधर ले गया। तो अच्छा ये एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने अब इसको इसके नीचे ले गया ताकि हम माइनस आराम से कर पाए, या अगर आपको लगता है तो हम इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली कैलकुलेशन हो सकती है, 9 उधर जाके एक्स स्क्वायर से माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका 16 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस उधर जाएगा 24 एक्स वाई माइनस 12 एक्स प्लस 16 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से मैंने है ना क्या करा, हमने पैराबोला की एक डेफिनेशन देखी थी कि पैराबोला होता क्या है। तो हमने ये देखा कि ऐसा कर्व जो होगा, इस कर्व पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसकी जो ना डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से फिक्स लाइन से बराबर होगी। तो इस डेफिनेशन के बेसिस पर ही हमने क्वेश्चन करे और देखा कि पैराबोला की इक्वेशन क्या हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे देखने की कि यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 20x, एक सेकेंड 6x, ओके 2xy, बेटा थोड़ा सा आई थिंक मैं 2xy को कंसीडर नहीं करा, बट कोई नहीं, मैं यहां से बता देता हूं। यहां पे बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 24xy एंड यहां से है 12x 16y एंड 4। तो अगर मैं कहूं पैराबोला की इक्वेशन में मुझे एक्स स्क्वायर भी मिलता है, वाई स्क्वायर भी, एक्स वाई भी, एक्स भी, वाई भी एंड 4 भी, ये सारी टर्म्स जो है मुझे पैराबोला की इक्वेशंस में मिलती है। अब चलते हैं बेटा आगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी क्या था, अभी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, हमने डेफिनेशन का यूज करके ही अपनी इक्वेशन को बना लिया था, लेकिन हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी तरीके से पैराबोला के भी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाना बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हमने क्या करा बच्चे, हमें पता चल गया कि एक सी शेप बनेगी। इस सी शेप पे मैंने एक पॉइंट लिया P1
और ये है मेरे पास P1 जो है ना, मैं P1 नहीं लेता, मैं P लेता हूँ, क्योंकि 1 2 फिर मैं ना फिगर पुट करने में आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे भी नहीं, मैं यहाँ पे बेटा P पॉइंट लेता हूँ, 1 भी नहीं, P पॉइंट लेता हूँ। एंड P जो है मेरे पास H के है। तो मैंने ये कहा कि इट इज अ लोकस, है क्या पैराबोला? ये लोकस है ऐसे पॉइंट का जिसकी डिस्टेंस जो है ना उन पॉइंट्स की क्या है, जो डिस्टेंस है फिक्स लाइन एंड फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, आपस में बराबर है, कुछ बस यही बात पड़ी थी। तो अब मैंने कहा ठीक है, तो ये हमें ये पता चल गया सी शेप बनेगी। ये फिक्स लाइन है जिसको हमने बोला था डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने ये बोला कि अब इस जो हमारे पास ये फिगर थी पैराबोला की, यानी कि हमारे पास ये फिगर होती है पैराबोला की, इस फिगर को मैं प्लेन पर लेकर आया। तो मैंने कहा ये फिगर जो है ना, फिलहाल जो है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरीके से इसका वाई एक्सिस है। तो मैंने इस फिगर को बेसिकली कहाँ पुट करा, प्लेन के ऊपर। तो मैंने कहा ये मेरा एक तरीके से ओरिजिन है, और ओरिजिन की वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी 0 0। तो मैंने ये देखा कि अब जो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, फिलहाल मैं इस ओरिजिन को बोलूं तो इस ओरिजिन की खासियत क्या होगी, इसकी डिस्टेंस इस येलो पॉइंट से जिसको हम बोलते हैं एस, और ये होता है हमारा फोकस। इसकी खासियत ये है बेटा ओरिजिन की कि इसकी डिस्टेंस एस से और इस लाइन से दोनों से क्या है, बराबर। हमने यही पढ़ा है बच्चे कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट पाया जाएगा उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से बराबर होगी। तो मैं ये कहता हूं कि मैं क्यों ना इस डिस्टेंस को यूज अ यूनिक कलर, एंड यूनिक तो मुझे मिल नहीं रहा, लेट्स से ऑरेंज कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैं ना इस डिस्टेंस को ए ट्रीट करता हूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए में, और इसी वजह से क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस से पॉइंट है तो ये क्या हो गया A0, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी तो ए ही होगी। हमने यही तो पढ़ा बच्चे कि इस पॉइंट पर ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है बच्चे कि मैंने अगर ए डिस्टेंस एज्यूम करा है तो मुझे फोकस मिला। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आया, जो पीछे लाइन है जिसको फिक्स लाइन, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है उसको मैं बोलूं तो ये है -A0, एक कदम पीछे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब -A है। तो बेसिकली इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -A, ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं, तो मैंने यह पॉइंट लिया, इस पॉइंट से मैंने कहा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, एंड इसी पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है कि मैं इतना जो डिस्टेंस है ये h चला, मैं इतना डिस्टेंस h चला, इतना डिस्टेंस में k चला, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को जोड़ूं, अगर मैं इस लाइन को जोड़ूं बच्चे, तो ये गैप तो हमारे पास a है, ठीक है। और इसके बाद मैंने कहा ये मैं इतना डिस्टेंस जो है मैंने h कवर करा है, तो यानी कि बच्चे p और इस वाले पॉइंट m, pm की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, a प्लस h। आप इसको कई तरीके से निकाल सकते हो बच्चे इस डिस्टेंस को, ठीक है। आप चाहो तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन भी लगा निकाल सकते हो, जहां पे पॉइंट मेरे पास h के हैं, लाइन जो होगी मेरे पास वो डायरेक्ट्रिक्स की होगी। तो pm आ गया मेरे पास बच्चे। अब pm के साथ साथ मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं अगली चीज, p से लेके मैंने कहा मुझे s डिस्टेंस चाहिए। तो ps के लिए मैंने क्या बोला बच्चे, h माइनस ए का स्क्वायर प्लस में k माइनस 0 का स्क्वायर, और ये होगा अंडर द रूट। तो मेरे पास पैराबोला के अंदर तो यही होता है कि pm और ps बराबर होते हैं, इसलिए मैंने क्या करा बच्चे, स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करी तो मैंने ये देखा बच्चे, ये आ गया a प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया h माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया k स्क्वायर। तो ये खोला तो बच्चे a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ah, ये आ गया बच्चे h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah।
प्लस के स्क्वायर। तो अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो ये दोनों मेरे कट रहे हैं, यहां पर आ गया मेरे पास बच्चे के स्क्वायर इज इक्वल टू 4AH। तो के स्क्वायर मेरे पास 4AH आ गया, यानी कि बच्चे इस कर्व पे जो भी पॉइंट होगा ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो सपोज कर लो कोई पॉइंट है P1 जिसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि इस रिजल्ट को। अगर मेरे पास कोई पॉइंट होगा P2 तो जिसके कोऑर्डिनेट K2 H2 K2 होंगे, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर कोई पॉइंट P3 है, ठीक है, जो इस कर्व पे होगा, वो भी बच्चे मेरे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा होगा। यानी कि बच्चे कहने का मतलब क्या है, इस कर्व पे पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कंडीशन क्या है बच्चे, ये वाले। तो अब इतने सारे पॉइंट्स को मैं अलग अलग ना दिखा के मैं एक वेरिएबल पॉइंट बता देता हूं कि मैंने कहा कि मैं इन सबको x और y के थ्रू डिनोट कर देता हूं। तो यानी कि बच्चे अगर मैं कहूं कि इस कर्व पे पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, एंड दिस इज इन इक्वेशन जो है हमारे पैराबोला की मिली। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हुई कि पैराबोला की इक्वेशन हमने कितने सिंपल तरीके से जनरेट करी है। बेसिकली लोकस का कॉन्सेप्ट यूज करा है, और लोकस यानी कि जो पॉइंट है वो जिस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो कंडीशन ही मैंने यहाँ पर लिखी है। आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है फोकस, हमने ये क्या होता है, तो ये ऑलरेडी हमने कहा कि जो भी डेफिनेशन में फिक्स पॉइंट की बात की जा रही है वो हमारा फोकस है। ठीक है, ये एक पैराबोला में भी फोकस ही है, पूरे कोनिक के अंदर भी ये फोकस ही रहेगा। आगे बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जिस फिक्स लाइन की बात करी जा रही थी, तो अगर मैं बात करूं कि एक फिक्स पॉइंट की बात करी जा रही थी, तो ये मेरे पास फोकस है, चाहे आप कोनिक लो या पैराबोला। और एक फिक्स पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस जो है एक फिक्स लाइन से दे रहे थे, तो ये फिक्स लाइन जो है हमारी डायरेक्ट्रिक्स थी, ये मेरे पास फोकस था, जिसको पैराबोला के अंदर एस से डिनोट किया गया है। असेंट्रिसिटी क्या है बच्चे, ऑलरेडी हमने बोला था, जो रेशो की बात हो रही है कांस्टेंट रेशो, उसे ई से दिखाया था। ये जो थी पीएस अपॉन में पीएम इज इक्वल टू ए थी। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास वर्टेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। The vertex of the parabola is the point of intersection between the parabola and axis। तो vertex से पहले मेरे को जानना पड़ेगा axis। तो axis क्या है, the axis of a parabola is the line that passes through the vertex and the focus। अब दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक हो गए हैं। तो वर्टेक्स को पहले क्लियर कर देते हैं। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज द पॉइंट वेयर पैराबोला चेंज डायरेक्शन आइदर रीचिंग मिनिमम और मैक्सिमम। अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, अभी के लिए हमारे पास ऊपर वाली रेलिवेंट है। तो बच्चे हुआ क्या, हमारे पास हमने एक कर्व बनाया, ठीक है, इस कर्व को एक फिक्स लाइन दी और हमने ये कर्व को फिलहाल ओरिजिन से लिया, एंड यहाँ पे मेरे पास एक फिक्स पॉइंट था। तो बच्चे मेरे को बोलता है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ पैराबोला एंड एक्सिस। तो बच्चे एक्सिस जो है जहां से फोकस पास होता है इसे एक्सिस बोलते हैं। जो लाइन फोकस से होके निकलती है वो एक्सिस कहलाती है। और एक्सिस जो है उसने बोला हुआ है एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन है यही हमारा क्या कहलाता है, वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सिस क्या होता है बच्चे, तो वो वर्टेक्स से पास होता है एंड फोकस से पास होता है एंड परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स पर। तो यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो एक्सिस जो है बेसिकली फोकस से पास होता है। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है। एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर भी होता है। आगे चलते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, देखो बच्चे हमने सर्कल पढ़ा, तो सर्कल के अंदर हमने ना डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को देखा था। कोड्स बेसिकली क्या होती है, तो बस सर्कल के दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करे। तो यहाँ पर भी कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। तो अब पैराबोला के अंदर भी यही है कि दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कोड कहलाती है। तो लेटस रेक्टम बेसिकली कोड है पैराबोला की, ये बोला हुआ है, जो कि पास होती है फोकस से और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस पर। तो हमने बच्चे ये सी शेप बनाई एंड हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक लाइन होगी,
और ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है। हमने ये बोला कि ये मेरे पास एक फोकस है, ऐसी लाइन जो फोकस से होके जाए और इस पर ये परपेंडिकुलर हो, ये होती है एक्सिस। जहां पे पैराबोला और एक्सिस मिल रहे हैं ये होता है मेरे पास वर्टेक्स, जो कि फिलहाल हमारी सिचुएशन में ओरिजिन ही है। ये मेरे पास एस है। अब बात करते हैं एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टम क्या है, जो कि फोकस से होके निकलती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि इस लाइन को बोला हुआ है हमारे पास। अब इसमें ना पैराबोला में इसकी लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो लेंथ निकालने के बहुत तरीके हैं, अगर आप सिंपल देख सकते हो। पहला तरीका है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि बहुत दूर हो गया है। हम्म, तो पहला तरीका है बच्चे, क्योंकि मेरे को ना इक्वेशन मिल गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो मेरे को ये पता है कि यहाँ पे a 0 है। अगर मैं इसके अंदर a डालता हूं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और ये, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2a प्लस माइनस, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा a 2a और ये वाला पॉइंट हो जाएगा a माइनस 2a। तो बेसिकली y की वैल्यू जो होती है वो हमारे लिए हाइट का काम करती है, तो एक ये हाइट आ गई बच्चे और एक ये हाइट आ गई। तो टोटल जो लेंथ है बच्चे, ये 2a आई है, ये 2a आई है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 4a आई है। आप इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा तरीका भी है बच्चे, बट मेरे ख्याल से आपको फाइनली समझ में आ गया, यही काफी है। अगर मैं दूसरा तरीका भी बताऊं तो यहाँ पे अब फिलहाल जगह भी नहीं बची, चलो कोई नहीं, यहाँ पे मेहनत करते हैं। तो ये पॉइंट है बच्चे, मैंने कहा ये पॉइंट जो है ना फोकस से पास हो रहा है, यानी कि ये लेंथ कितनी है a और ये लेंथ भी कितनी है a। तो यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2a, और मैंने कहा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 2a, और ये लेंथ बराबर है, तो 2a तो टोटल कितना आ गया 4a। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, लेटेस्ट सेक्टम के बाद आता है फोकल कोड। फोकल कोड क्या होती है, ऐसी कोड जो बेटा पास होती है फोकस से ऑफ द पैराबोला से एंड is the focal chord of the parabola. It cut the parabola at two distinct point। यानी कि बच्चे पिछली बार लेटेस्ट रेक्टम एक कोड थी जो कि फोकस से ही निकल रही थी और परपेंडिकुलर भी थी एक्सिस पे। इस बार ये फोकस से निकल रही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, बस आप इतना सा डिफरेंस देख सकते हो। एंड फाइनली फोकल डिस्टेंस क्या होता है हम समझ लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट pxy ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस, किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल डिस्टेंस कहलाता है। PS इज द फोकल डिस्टेंस इन द अबव फिगर। जब भी हम PS वगैरह यूज करते थे, याद है अगर हम पूरा लेक्चर देख कर आए हैं, PS अपॉन में PM, तो ये PS जो होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड अ फोकल डिस्टेंस। आगे चलते हैं बच्चे। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जो पढ़ के आए हैं इस कर्व के अंदर उसको धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये मेरे पास फोकस है तो ये हो गया A0। एक्सिस क्या होता है बेटा, हमारे पास वो लाइन जो होती है जो फोकस से निकल के जाए, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है फिलहाल के लिए यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 0 होता है। वर्टेक्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक्सिस और पैराबोला कट कर रहे हैं, यानी कि हमारे केस में ये ओरिजिन हमने इसको ट्रीट किया है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है, अगर इतनी लेंथ a है, अगर इतनी लेंथ a है तो मेरे पास ये लेंथ भी क्या होगी a, ये लेंथ भी बेटा a होगी, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस a मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरे पास 4a ही रहेगा। आगे चलते हैं। अब बच्चे पैराबोला जो है हमारे पास, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं बोला हुआ कि बच्चे ये फिक्स पॉइंट जो है, ये फिक्स लाइन, जैसे फिक्स पॉइंट आपका राइट हैंड साइड में ही होगा कि, यानी कि जैसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होगा, ऐसा नहीं है। फिक्स पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, यानी कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड। फिक्स पॉइंट आपका बेटा वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। फिक्स एक्स पॉइंट जो आपका वाई एक्सिस पे होने की वजह से ये पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड दोनों हो सकते हैं। तो यानी कि पैराबोला की 4 शेप हो सकती है। ये कह सकते हो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव,
वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब बातें सारी वही हैं, क्योंकि अलग से प्रूव करने वाली कोई बात नहीं है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। ध्यान रखना बेटा, ए हमेशा पॉजिटिव होगा इस केस में, क्योंकि अगर ए नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम इक्वेशन ड्राइव करें तो नेगेटिव आएगी। अब बातें वही है, फोकस जो है बेटा ए डिस्टेंस है, लेकिन ये नेगेटिव साइड है, तो ये माइनस ए जीरो हो जाता है। एक्सिस अभी भी बेटा एक्स एक्सिस ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स अभी भी बेटा ओरिजिन ही है, क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट करा है, जहां पे एक्स एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हो जाएगी, अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो a है। लेफ्ट हैंड साइड गए तो फोकस मिला, राइट हैंड साइड जाएंगे तो दैट मींस x इज इक्वल टू a, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। लेटस रेक्टम की लेंथ बेटा सेम ही रहेगी, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। पैराबोला आप लेफ्ट हैंड साइड बनाओ या राइट हैंड साइड बनाओ। सिमिलरली बेटा पैराबोला अगर यहां बनता है तो फोकस जो है बेटा आपका अब एक्स एक्सिस पे चले जाएगा, एक्सिस आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जो है 0। वर्टेक्स फिलहाल हमने ओरिजिन लिया है। अगर ऊपर की साइड हमारे पास है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, y इज इक्वल टू माइनस ए, लेंथ ऑफ रेक्टेसेक्टम 4a ही रहती है बच्चे। फोकस अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, हमारे पास 0 माइनस ए, एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ अ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, अरे ये क्या लग रहा, हाँ, x इज इक्वल टू 0 सही भरा मैंने। वर्टेक्स मेरा ओरिजिन ही है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a, ये मेरे पास 4 ही रहेगी। तो अब छोटे से दो क्वेश्चन लेते हैं, देन इस लेक्चर को खत्म करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फोकस। फोकस निकालना है, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, लेटस रेक्टम निकालना है। पूरे पैराबोला को जो हम पढ़ के आए हैं, अगर आप पूरी इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले मेरे को इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है 4ax, यानी कि बच्चे 4a किसके बराबर है 8 के, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अगर मेरे को a की वैल्यू आ गई और मेरे को ये पता है तो फोकस क्या होता है a0, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करवाऊं तो मुझे ये पता है बच्चे कि अभी ये मेरे पास इस तरीके से आएगा, जहां पे ये मेरे पास 0 0 है। फोकस को इस बार हम काफी अंदर ले लेते हैं, ये मेरे पास फोकस है, ठीक है। तो फोकस a0 हो गया। जितनी डिस्टेंस मेरी यहाँ पर थी, यहाँ पे ये a डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी a डिस्टेंस हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस से हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस भले ही पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव साइड होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगी। लेटस रेक्टम बेटा हमेशा 4a ही रहता है, तो इसलिए हमारे पास ये हो गया 8, काम खत्म। और अच्छी बात बताऊं बच्चे, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही मेरा 4a होता है, यानी कि लेटस रेक्टम होता है। बस बच्चे यही बोला हुआ था। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। इक्वेशन बोली हुई है, फोकस दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया। तो बच्चे अब हमें थोड़ा सा कर्व बनाना पड़ेगा। फोकस मेरा जो है ना y एक्सिस में है, सॉरी x एक्सिस में है नेगेटिव साइड, तो मैंने सी शेप बनाई नेगेटिव साइड एंड इससे रेस्पेक्टिव डायरेक्ट्रिक्स बनाया। मैंने कहा ये मेरी फोकस है एंड ये मेरा ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 3। ये पूरा का पूरा मेरे पास एक्सिस आ गया एंड ये पूरा का पूरा मेरे पास ओरिजिन का हिसाब किताब है। गंदा बन गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट -3 0 है, तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये भी 3 आ गया बच्चे। और क्योंकि ये उस साइड 3 गया है तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3। द पैराबोला हुज फोकस -3 0, डायरेक्ट्रिक्स जो है x इज प्लस 5 दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू -5। ओके, आई थिंक बच्चे ये